I think it's the fourth lecture for the topic optics and second lecture for the topic refraction, right? So today we start from a very important topic that is called critical angle. So what is the definition of critical angle? So obviously you need two medium. One is called the denser medium, another is called the rarer medium. So we can mention here N1 greater than N2. So what is the definition? Definition is that when light travel from denser medium to rarer medium, when light travel from denser medium to rarer medium, we know the light move away from the normal for a certain angle of incidence. If the refracted ray makes an angle 90 degree, then the angle of incidence is called critical angle. I repeat, when ray travel from a denser medium to rarer medium for a certain angle of incidence, if the angle of incidence is greater than critical angle, when they travel from denser medium to rarer medium for a certain angle of incidence, if the refracted ray makes an angle 90 degree, then the angle of incidence is called critical angle. So from laws of refraction, refractive index into sine of angle equals to second medium into 90 degree. So what we have, sine theta c, that is n2 by n1. So theta c sine inverse n2 by n1. Now, the important case is that if n1 is n and n2 is 1, means the second medium is air, then we can say the critical angle is sine inverse 1 by n. Is it okay, everyone? Yes, sir. Next definition is total internal reflection. Next definition is total internal reflection. So what do you mean by total internal reflection? If the angle of incidence is more than the critical angle, then what happened? Then this refraction angle is more than 90 degree. So what do you mean by more than 90 degree? It is coming back to the first medium. So how we define total internal reflection? How we define total internal reflection? If the when light, again the same statement, when the light travel from denser medium to rarer medium, when the light travel from denser medium to rarer medium, if the angle of incidence is more than critical angle, means greater than critical angle, then the refracted ray bounces back to the first medium. Bounces back to the first medium. This phenomena is called total internal reflection. In that case, angle of incident and angle of reflections are equal. Now, why it's internal reflection? Because it's again coming back to the first medium, but not by the phenomena of reflection. It's by the phenomena of refraction. So internally coming back. And why it's total? Because if we compare it with the normal reflection, what we find in normal reflection, almost 70% of the light reflect and the 30% light is refracted. But here what happened, almost all light, that is almost you can say 99.9% light is coming back, means the brightness of this coming back ray, means bounces back ray, the brightness is very large, and due to that large brightness, so if you trap that light inside anything, so it will be very brighter. Okay, so that's why it's called total internal reflection. So I can show you one example of total internal reflection. The example is optical fiber. I just want to show you, just give. So देखो, the best example of total internal reflection is optical fiber, and this is the optical fiber. You already show
see this thing in the market like Fowerverse. So what happened? There is a light. So, and this is the optical fiber. See, when we put it here, so what happened? This light from here is coming back to this side. So you can see this light. Huh? And if I change the color of the light and see you bend it. So this light, देखो मैंने इसको जब बेंड किया है तो ये तो सीधा जा रहा है, ये तो इधर नहीं आना चाहिए, लेकिन देखो ये ऐसे करके टेढ़ा करके लाया है. सो लाइट इसके अंदर से जाते 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 यहाँ पे आ गया है. अब देखो मैंने कलर चेंज किया, सो यू सी द डिफरेंट कलर. तो देखो ये लाइट इसके अंदर होते हुए, इससे होते हुए इधर से निकल रहा है. सी डिफरेंट डिफरेंट कलर यू सी ना. सी उल्टा कर दिया एकदम. देखो ये इधर है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है. सो यू कैन सी, देखो लाइट जो आ रहा है, यू कैन सी इट, इसके अंदर से आ रहा है. सो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर. और ये काफी इंपॉर्टेंट है. तुम लोग जैसे तुम लोग का 12th का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये ऑप्टिकल फाइबर बना सकता है, हालांकि शायद इस बार प्रोजेक्ट नहीं है. तो द ऑप्टिकल फाइबर इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसका बेस्ट जो यूज है दैट इज द कम्युनिकेशन. जैसे अभी 4G कम्युनिकेशन है, इस 4G कम्युनिकेशन में वी यूज दिस ऑप्टिकल फाइबर इन 4G कम्युनिकेशन. फिर जैसे एंडोस्कोपी वगैरह होता है या माइक्रो सर्जरी होता है, सो वहाँ पे वीडियो कैमरा ले जाना, हाँ, या फिर लाइट ले जाना, फिर उसमें लाइट से उसका मानो किसी चीज को मुझे कट करना है, ये सब हम लोग इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू से कर सकते हैं. तो रे हम लोग यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम लोग कोई भी रे भेज सकता है और ये रे इसके थ्रू से सामने से आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर. और इस ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले इसका फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एक इंडियन साइंटिस्ट को ही कहा जाता है, लेकिन एक जापानीज को आफ्टर 20-30 ईयर्स एक जापानीज को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, उस इंडियन को नहीं दिया गया. आई डोंट नो व्हाई. अब इसके ऊपर देखो एक न्यूमेरिकल हमें करना है और इसका एक थ्योरी भी है ऑप्टिकल फाइबर का, तो हमें दोनों ही देखना है. ठीक है. सबसे पहले एक थ्योरी देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर, जिनका मैथ्स है, कंप्यूटर है, उसका भी ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा बहुत है कि कॉमन यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को डिमेरिट्स क्या क्या है, एवरीथिंग इज देयर. सो वी हैव ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली क्या होता है, कैसे लाइट जाता है, तो इसका दो मीडियम होता है. ठीक है, दो मीडियम होता है. इसको बोला जाता है कोर, इसको बोला जाता है क्लैडिंग. तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. अब देखो क्या होगा, जब ये ऐसे करके लाइट आएगा तो लाइट क्या करेगा, ऐसे जाएगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. ऐसे करके जाते जाते जो एंड से है, एंड से वो बाहर आ जाएगा. सो तुम्हें ये रे यहाँ पे दिखा सकते हो. इफ यू बेंड इट सो इट डजंट मैटर. ठीक है. दिस सिग्नल यू कैन सेंड इट फ्रॉम हियर टू हियर. अब इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या है कि तुम्हें कितना एंगल में रे को रखेंगे कि मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये जरूरी है. मतलब मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा मैक्सिमम एंगल I maximum. If we know this angle, suppose by calculation I got this maximum angle is 30 degree. So if we maintain less than 30 degree, any angle less than 30 degree, तो वो सबका सब रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. मतलब सबका सब एंगल में हम रे को, सिग्नल को ट्रांसफर कर सकेंगे वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे. तो अगर मैं इसको आई मैक्स लेता हूं, अगर ये आर है और अगर मैं इसको क्रिटिकल एंगल लेता हूं, पहले इसका लॉजिक को समझो. हाँ, दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज थीटा सी एंड दिस इज 90 डिग्री. सो टोटल इज 180 डिग्री. सो वी कैन से आर प्लस थीटा सी इज 90 डिग्री. तो अगर आर प्लस थीटा सी इज 90 डिग्री है, इफ आर प्लस थीटा सी is 90 degree, that means
अब देखो ध्यान से, 1 इंटू साइन आई मैक्स इंटू म्यू को एन कोर इंटू आर, मतलब 1 इंटू साइन आई मैक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एन कोर इंटू साइन आर. If we decrease the value of I max, so the value of R decrease, is it okay? अगर मैं I का वैल्यू को बढ़ाऊं R बढ़ेगा, I का वैल्यू को घटाऊं R घटेगा. Is it clear? Yes. तो अगर R का वैल्यू को घटाएंगे, देखो R plus theta c is fixed, so if the value of R decrease, theta c increase. मतलब अगर मेरा मानो ये थीटा सी 45 डिग्री पे मानो मेरा क्रिटिकल एंगल है, और या मानो ये 60 डिग्री पे क्रिटिकल एंगल है, तो ये 30 डिग्री है. अगर मैं I को घटाया तो R 30 से मानो 25 हो गया, तो थीटा सी क्या हो गया, 60 से ज्यादा 65 हो गया. तो जहां ये थीटा सी मोर देन द क्रिटिकल एंगल, it will enter into the total internal reflection, because for total internal reflection the condition is that incident angle must be greater than critical angle. You understand the condition? Yes, Yes, sir. sir. तो ऑन दैट बेसिस मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर मैं क्रिटिकल एंगल को ही लूं, सो एन कोर इंटू साइन थीटा सी, दैट इज एन क्लैडिंग into sine 90 degree according to the condition. So sine theta c is n cladding by n core. So cos theta c कितना हो जाएगा, 1 minus sine square theta c, that is 1 minus n cladding by n core whole square, that is n core square minus n cladding square by n core. Ab, if we use this formula, so 1 into sine I max is equals to n core into sine r. अब n core into sine r को मैं क्या लिख सकता हूं, from this r is 90 minus theta c, we can write, so 90 minus theta c. So 90 minus theta c is cos theta c. And what do you mean by cos theta c? We have cos theta c is n core square minus n cladding square by n core cancel. So what you have, root under n core square minus n cladding square. So I max is how much? Sine inverse root under n core square minus n cladding square. I think you understand what I want to say. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So this one is very, very important. After that, the next a very, very important numerical related to critical angle. ठीक है, ये थ्योरी, इसका ऊपर अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द आई मैक्स, दे कैन गिव यू द एन कोर, दे कैन गिव यू द एन क्लैडिंग. सो रूट अंडर एन कोर स्क्वायर माइनस एन क्लैडिंग स्क्वायर साइन इनवर्स, यू गेट द वैल्यू. तो जनरली ये सब जो वैल्यू है, ऐसा एंगल होता है कि विदाउट दैट ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल इट्स वेरी टफ टू फाइंड आउट. तो तुम्हें सिर्फ उसका वैल्यू दे देगा, उस वैल्यू के फॉर्मेट में वो आंसर रहेगा. अब मैं तुम लोग को एक और क्वेश्चन कराता हूं. इट्स अ लवली क्वेश्चन फ्रॉम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सी, अ बल्ब इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ 2√7 meter in water. A bulb is placed at a depth of 2√7 meter in water, and a floating apex disc is placed over the bulb so that the bulb is not visible from the surface. What is the minimum depth of the disc? तो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, मानो कंटेनर में वाटर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया है 4/3. यहाँ पे एक बल्ब है. तो ये जो बल्ब है, तो बल्ब को अगर तुम ऊपर से देखोगे तो क्या होगा, कितना तक देख पाओगे. तो देखो ये रे गया बल्ब का,
रे जाके बाहर चला गया, सो यू कैन सी इट, ये रे गया बाहर चला गया, तो यू कैन सी इट। फिर ये रे गया, देखो एज द एंगल इंक्रीज रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑल्सो इंक्रीज। ऐसे करते करते मानो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, तो अगर इसके बाद का रे को क्या तुम बाहर देख पाओगे? ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? एज वेल एज योर एंगल इंक्रीज, तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल। इससे ज्यादा करेंगे तो क्या हो गया? दिस रे इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, सो कमिंग बैक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई वांट टू से? Yes, sir. तो मुझे बेसिकली यहां तक का रे बाहर से बाहर चला जाएगा, है ना? क्रिटिकल एंगल तक का रे जो है वो बाहर जाएगा। तो मैं मानो यहां तक का रे बाहर जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे एक ओपेक डिस्क लगाऊं, यहां तक का रे मुझे बाहर जाएगा, ये सब रे बाहर जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक ओपेक डिस्क लगाऊं तो एक भी रे बाहर नहीं जाएगा। ओपेक डिस्क मतलब विच इज अनक्लियर, अगर हम लगाएगा इसके ऊपर बाहर नहीं जाएगा, तो एक भी रे बाहर नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Sir. मैंने एक साइड का दिखाया, एक साइड को नहीं दिखाया, एक साइड को क्लियर रखा ताकि मुझे सॉल्व करना है। और इसका जो डेप्थ दिया है दैट इज 2√7 मीटर, एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द diameter of this disk. So if I know the radius of the disk, so we can easily find out the diameter. So basically examiner मुझे क्या बोल रहा है? Basically examiner मुझे बोल रहा है इस critical angle को यूज करो। So we can use in 4/3 refractive index sin theta c, 1 air into sin 90 degree. So sin theta c is 3/4. If you want to know cos theta c, so 1 minus sin square theta c, 1 minus 3/4 square, that is √7/4. Is it clear, everyone? Yes, sir. So now see, this one is the, if we consider this angle from this triangle, this is the perpendicular, this is the base. Is it clear? Perpendicular base. So we can use tan theta c perpendicular, which we don't know, by base, which we already know. And the tan theta c is sin theta c by cos theta c. We know the value of sin theta c, 3/4. We know the value of cos theta c, √7/4. So what we have? 3/√7. So 7 gaya. So R is 6 meter. So if R is 6 meter, diameter is 2R, that is 12 meter. Is it clear? Yes, sir. So what is the answer? Answer of the question is diameter of the wire is 12 meter. Is it clear, everyone? Yes, sir. तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आफ्टर दैट, इफ यू अंडरस्टैंड दैट वन, माय नेक्स्ट पार्ट इज प्रिज्म। ठीक है, माय नेक्स्ट पार्ट इज प्रिज्म। प्रिज्म इज आल्सो अंडर रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रिज्म भी रिफ्रैक्शन में ही आता है। और तुम्हारा सिलेबस में प्रिज्म का ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मिनिमम डेविएशन है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम हम लोग प्रिज्म का जितना सारा पॉसिबिलिटीज है, जैसे मैक्सिमम डेविएशन क्या होता है, गेजिंग क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। बिकॉज दिस प्रिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। पर योर ऑन द बेसिस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम तुम लोग को एकदम छोटा सा पार्ट प्रिज्म का आएगा। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन फ्रॉम प्रिज्म, दे आर वेरी गुड क्वेश्चन, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग मिनिमम डेविएशन तक की पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों ने मंडे को थर्सडे को पढ़ाया था। ठीक है,
So first of all, एक प्रिज्म का टोटल 5 सरफेस होता है. एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, नीचे एक सरफेस, 5 सरफेस. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. इज इट क्लियर? Yes, sir. So this is called the angle of prism. B. So A is called the angle of prism. ये वाला एंगल को. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये एक नॉर्मल रे रखा हूं और ये मेरा इंसिडेंट रे है. ओके, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे आई. फिर ये रे ऐसे गया और फिर यहाँ पे एक नॉर्मल बना, फिर ये इधर चला गया. तो इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे. ये होता है रिफ्रैक्शन 1, ये होता है रिफ्रैक्शन 2. इसको हम नाम पी क्यू आर एस दे सकता है. इसको हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके साथ यहाँ पे मिलेगा, दैट इज लेट इट बी टी, एंड इसको हम लोग मान लिया ओ. और ये जो एंगल है इसको बोला जाता है डेविएशन एंगल. डेल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन. Why this del is the angle of deviation? See, this is the incident ray और ये इधर चला गया है. तो रे इधर जा रहा था, रे इधर चला गया है. सो ये वाला रे और ये वाला रे का जो बीच का जो एंगल है, that is called angle of deviation. Is it clear, everyone? Yes, sir. Now, if we see this AQOR, this rectangle AQOR, AQO plus ARO is 180 degree. Is it okay? Means angle AQO plus angle ARO equals to 180 degree. 90 plus 90, is it okay? 90 plus 90, 180 degree. Everyone, you understand? Yes, sir. So if ये दोनों का रेक्टेंगल का सम 90 डिग्री है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, अगर दो ऑल्टरनेट साइड का सम 180 डिग्री है, सो रेस्ट जो दो है वो दोनों भी 180 डिग्री होगा. सो ऑन दैट बेसिस द एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस ट्रायंगल QOR is also 180 degree. Is it clear? ये दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये दोनों का सम भी 180 डिग्री होना पड़ेगा according to the property of rectangle. Is it clear? Everyone, is it clear? Hello? Yes. Acha. Now in the triangle, in triangle QOR triangle, we know कि sum of the angle is 180 degree. So we can say R1 plus R2 plus angle QOR is 180 degree. Can we write this? Let it be equation number 1. Let it be equation number 2. Let it be equation number 3. Is it okay? We can write this from the triangle, this triangle. Student, please respond. Is it okay? Everyone? Khushi? Aditi? Yes, sir. Yes, sir. After this, it's okay. Huh? Now, if you compare equation 2 and equation 3, देखो QOR सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं A is R1 plus R2? Yes, sir. So this is now, it's a very, very important thing. From now we can use every time for prism. That angle of prism is R1 plus R2. From where you get it? This is the proof of this. Now see, this del is the deviation angle. That is the external angle. And what is the definition of external angle? External angle is the sum of the two internal angles.
So this one is your one internal angle and this one is your one internal angle. अब इस इंटरनल एंगल का वैल्यू कितना होगा? देखो ये I है और ये R1 है, सो I माइनस R1, और इसके लिए क्या है? देखो ये है E, ये R2, तो E माइनस R2. इज इट क्लियर? यू कैन सी इट प्रॉपरली, है ना? देखो दिस वन इज I माइनस R1, this one is E minus R2 because this one is E, this one is I. Clear? So can you explain it once again, please? देखो ये और ये अगर है, ये और ये सेम होगा ना? Yes sir, vertically opposite अगर angle. ये I है तो ये पूरा I होना चाहिए. अब ये R है तो पूरा I से अगर हम इतना को निकाल दे तो ये क्या हो गया? I माइनस R1. Yes sir. और सिमिलरली ये पूरा E है, ये है R2, तो ये ग्रीन वाला क्या हो जाएगा? E माइनस R2. Yes sir. So what we can say that del is sum of the two internal angle. That means I minus R1 plus E minus R2. That means I plus E minus R1 plus R2. So deviation is I plus E. R1 plus R2 क्या है? A. तो ये दो मेरा बहुत ही काम का है. पहला वाला A is R1 plus R2 और दूसरा जो डेविएशन एंगल है I plus E minus A. यहां तक सबको समझ में आया है? Yes sir. Everyone, you all understand up to this? Yes sir. Okay. अब देखो, अब जो आज का टॉपिक है और इन टर्म्स ऑफ योर बोर्ड एग्जाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रेस्ट जो है मैं जो इसके बाद जो प्रिज्म का जो नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा, दिस ऑल आर रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट दैट dispersion, but for board exam as well as entrance exam, that part is very very important. So minimum deviation, ये जो मिनिमम डेविएशन है ये तुम लोगों का प्रैक्टिकल में भी है और ये बड़ी दुख की बात है कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल तुम लोग कोई भी प्रैक्टिकल कर नहीं पाए हो. नहीं तो ये प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल मोस्टली तुम लोग क्लास 11th में भी शायद किया होता. ठीक है, लाइक ओ इस बार तो सिलेबस चेंज कर दिया, इस बार तो नहीं है, लास्ट ईयर का बच्चा लोग किया था. तो मिनिमम डेविएशन, तो देखो मिनिमम डेविएशन में क्या है? दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द इंसिडेंट रे. सो इसमें क्या होता है, इफ वी इन डिफरेंट एंगल हम लोगों को क्या करता है, प्रिज्म लेके बाई प्रैक्टिकली एक प्रिज्म लेके डिफरेंट एंगल में रे डायग्राम लेके ड्रॉ करना पड़ता है. और जब इसको हम ड्रॉ करता है ऐसे करके एक एंगल मिलता है, दिस एंगल इज कॉल्ड द मिनिमम डेविएशन. देख ही रहे हो, बड़ा घटा फिर बढ़ने लगता है. तो जब पहले घटा फिर बढ़ा तो जो सबसे ज्यादा घटा हुआ है दैट इज द मिनिमम डेविएशन. और इस मिनिमम डेविएशन का कंडीशन ये है, angle of incident is equals to angle of emergent. So this is the condition for minimum deviation. So for minimum deviation, what is the condition? Angle of incident is equals to angle of emergent. Is it clear? Yes sir. So अब मैं इस फिगर को थोड़ा सिंपल करके रखता हूं क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. ये मेरा प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा इमर्जेंट रे है ना? ये है E, ये है I, ये है R1, ये है R2 और मुझे कुछ नहीं चाहिए. अब देखो, अच्छा हम नाम भी दे देते हैं. फॉर फेस AB, ध्यान से समझो, ये AB फेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज N. For face AB, from laws of refraction, देखो ये जो फर्स्ट मीडियम है क्या है, एयर इंटू साइन आई
n into sine r1. Can we write it? Can we write this? Yes, sir. For phase AC. For phase AC. For phase AC. From laws of refraction. From laws of refraction. From laws of refraction. AC phase के लिए. So this is the first ray. This is the second ray. So what we can write, n into sine R2 equals to 1 into sine E. Is it clear? Now see, if we compare this one and this one with the condition I is equals to E, if देखो ये दोनों, if I is equals to E, 1 into sine I, 1 into sine R, if I is equals to E, can we write R1 is equals to R2? देखो ये दोनों तो इक्वल हो गया ना, बिकॉज I is E. अरे I and E equal, this is the condition. So sin I equals to sin E लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये दोनों को इक्वल लिखेगा तो ये दोनों भी इक्वल हो गया ना, मतलब n into sin R2 n into sin R1 हो गया ना. Yes, sir. तो Yes, sin R2 equals to sin R1, माने R2 equals to R1 equals to R लिख सकते हैं ना? Yes, sir. अगर R1 equals to R equals to R2 equals to R1 equals to R लिख सकता है, so एंगल ऑफ प्रिज्म मेरा R1 प्लस R2 दोनों तो इक्वल है, तो इसको मैं 2R, मतलब R को मैं क्या a/2 लिख सकता हूं इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन. Is it clear? Yes, sir. And at the same time, as my I and E are equal, so del minimum both are equal, so we can write 2I minus A, because I is equals to E. So 30, 30, 60, 40, 40, 80, 50, 50, 100. So we can write now 2I. So 2I is del minimum plus A. So I is del minimum plus A/2. Can we write this? Yes, sir. So if we write this, now we know for minimum deviation, this is I, this is R. So for AB, from laws of refraction, 1 into sine I. In place of I, now we can write del minimum plus A/2. Can we write? Yes, sir. Yes, sir. Sine R. In place of R, now we can write sine A/2. So my N, refractive index, that is sine del minimum plus A/2 sine A/2. That is my third very, very important formula. तो मुझे एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, और एक ये याद रखना है for minimum deviation. Is it clear? Yes. अच्छा, इसके साथ एक important note है जो कि यहाँ पे मेरा यूज नहीं होगा, लेकिन when we go through that dispersion deviation, minimum deviation, in that case that is very, very important. तो मैं उस important note को कहीं पे बुक में नहीं मिलेगा, they directly use the formula, but मैं यहाँ पे वो derivation कर देता हूँ. For very small angle of prism,
याद रखना ये एंगल का मैक्सिमम वैल्यू अप टू 10 डिग्री होता है। अगर मेरा ये एंगल स्मॉल हो गया तो साइन थीटा इज थीटा, साइन थीटा इज थीटा, cos theta is 1, tan theta is theta. You remember that one when the angle is very small, sin theta is theta. तो उस समय मिनिमम डेविएशन नहीं, नॉर्मल डेविएशन, जो डेविएशन है वही तुम्हारा मिनिमम डेविएशन है फॉर वेरी स्मॉल एंगल n. In place of sin this we can use del plus a by 2 and here we can use a by 2. So what happened, 2 cancel, so del plus a by a, so na, that is del plus a, so del is a n minus 1. ये फॉर्मूला मुझे फॉर डिस्पर्शन, ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मेरा यूज होगा, तो मैंने इसको इंपॉर्टेंट नोट में लिखा दिया, तब हम लोग इसको यूज करेंगे। कहाँ से आया ना, यहाँ से आया, तुम्हें अगर देखना होगा सर ये मिला कहाँ से, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम दैट प्रिज्म. इज इट क्लियर? इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. sir. अब हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू मिनिमम डेविएशन, बिकॉज तुम्हारा सिलेबस में मेनली मिनिमम डेविएशन है। और फिर मैं नेक्स्ट जो क्लास होगा मतलब थर्सडे को फिर मैं इसका कुछ न्यूमेरिकल्स और कराऊंगा रिलेटेड टू एग्जाम आइडिया एंड ऑल, और फिर मैं तुम लोगों को प्रिज्म का जो बाकी है विच इज टोटली बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम वो कराऊंगा। लेकिन आज मैं अभी सबसे पहले जो कराने वाला हूँ वो है तुम लोगों को बेसिक कुछ क्वेश्चंस, लाइक मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर तुम लोग को ये करूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कैसे करोगे ये भी तुम्हें पता चलेगा यहाँ से। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। अच्छा, कहीं कहीं पे n होगा, कहीं कहीं पे वो लोग म्यू ले सकता है, म्यू एंड n आर सेम थिंग, दे आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So a ray of light passes through a prism having n is √2, having n is √2, suffers minimum deviation. It is found that the angle of incidence is double the angle of refraction within the prism. It is found that the angle of incidence is double the angle of refraction. Angle of incidence is double the angle of reflection. It is found that the angle of incidence is double the angle of reflection within the prism. What is the angle of the prism? तो दो बात है, पहला बात है इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इट इज द मिनिमम डेविएशन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, angle of incident is double of angle of refraction. What you have to find out, a ray of light passing through a prism having this suffers a minimum deviation. It is found that the angle of incident is double the angle within the prism. What is the angle of the prism? Means what they ask you find out A. So very simple, we know A is 2R and 2R is I. So can we write A equals to I? Yeah, I equals to A. Can we write this? Yes, sir. And at the same time, minimum deviation, that is 2I minus A. So we can use 2I. A is I minus I. That means I is 2A minus A. That means A. Can we use this? Can we use this? Yes, sir. So N is, what is the formula? Sine del minimum plus A by 2 by sine A by 2. So sine del minimum is A plus A by 2 by sine A by 2. That means sine A by sine A by 2.
तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 बाई साइन a by 2 sin a by 2 sin a by 2 cancel, and n is given how much, √2. So cos a by 2 is √2 by 2, that is 1 by 2. 1 by √2 is how much, cos 45 degree. So a by 2 is 45 degree, a is how much, 90 degree. बुझे? हेलो हेलो, Yes, sir. को समझ में आया? Yes. Now I move on to the second question. कि सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे करोगे तुम लोगों को। फिर मैंने एक शीट भेजा है ना प्रॉब्लम्स का, ऑप्टिक्स का। Yes, sir. तो उसमें तुम देखना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, ऐसे करके बोल बोल के क्वेश्चंस है। So you can try this questions. These are really very good question. Now the question number 2. देखो ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। Question number 2. A ray of light undergoes a deviation of 30 degree. So deviation of how much? 30 degree. A ray of light undergoes a deviation of 30 degree where incident on an equilateral prism of refractive index n is √2. What is the angle subtended by the ray inside the prism with the base of the prism? Very very good question. हाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये रे आया, ये गया, फिर ये आया। सो ये रे और ये जो बेस है इसका बीच में कितना एंगल है, तो इसके लिए तुम्हें तब ना तुम ये निकाल सकोगे। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रे इनसाइड द प्रिज्म विद द बेस ऑफ द प्रिज्म। एक बात देखो, एक छोटा सा हिंट दे देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है और अगर तुमने प्रूफ किया कि ये मिनिमम डेविएशन का केस है, तो ज्यादातर केस में ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होता है, मतलब दिस एंगल इज 0। ठीक है। और यहाँ पे एक और भी बात बोल दिया, ए रे ऑफ लाइट undergoes a deviation of 30 degree where the incident on an equilateral prism. So equilateral prism means angle of prism is how much? 60. Very good, 60 degree. तो मेरे पास इतना सारा इंफॉर्मेशन है और मुझे ये दिखाना है ये दोनों का बीच में एंगल कितना है। तो अगर ये मिनिमम डेविएशन करता है तो ज्यादातर केस में पैरेलल ही होगा। ठीक है। और हम लोग पैरेलल को प्रूफ भी करेंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास सिर्फ यही दो डेटा दिया है और ये भी दिया है, तो क्या मैं मिनिमम डेविएशन को कंडीशन, because in the question they are not mentioned its minimum deviation, we have to check it that whether it's minimum deviation or not. So n is equals to sin del plus a by 2 sin a by 2 according to formula. If we suppose this is minimum deviation and if it is minimum deviation, so then if n is equals to √2 आ गया, मुझे n निकालना है क्योंकि ये दोनों दिया है। अगर n का वैल्यू √2 आ गया तो we can say yes it is minimum deviation because we use the minimum deviation condition. Del is 30 degree plus 60 degree by 2 sin 60 degree by 2. तो sin 45 degree sin 30 degree sin 45 1 by √2 1 by 2 √2 yes n का वैल्यू √2 आया, मतलब yes this is the condition of मिनिमम डेविएशन। जहां देखो मिनिमम डेविएशन हो गया a is 60 डिग्री मतलब 2r, r कितना हो गया 30 ईच, हुआ कि नहीं बोलो। as you check and satisfy yes it is minimum deviation, नहीं भी हो सकता था क्योंकि हालांकि ये दोनों ही केस दिया है और कुछ इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल कुछ नहीं दिया है, मतलब वो मिनिमम डेविएशन होगा ही होगा। लेकिन तुम एक बार चेक कर लो। ठीक है। अगर चेक करके नहीं मिला इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है, एग्जामिनर ऐसे आए हुए दे दिया है।
सो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा कि नहीं बोलो? ये तो 90 डिग्री होता है ना, तो ये 30 तो ये 60, ये Yes, ना, sir. और ये भी मेरा 60 है बिकॉज इट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये दोनों 60, इसका मतलब क्या है? पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब क्या है? कितना एंगल बनाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय द रे इज 0 डिग्री। Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. One more question. This one is also a very good question from angle of from minimum deviation prism का। देखो question number 3. Question number 3 is that a ray of light is incident at an angle 60 degree. A ray of light incident at an angle 60 degree. So angle of incident is 60 degree on one face of a prism which has an angle of 30 degree. Which has an angle of 30 degree. इसका मतलब angle of prism is 30 degree. The ray emerge out of the prism makes an angle 30 degree with the incident ray. What do you mean by that statement? Anyone please tell me. The ray emerge out of the prism makes an angle of 30 degree with the incident ray. What do you mean by that? So, pardon? The ray emerge out of the prism makes an angle 30 degree, makes an angle of 30 degree with the incident ray. What do you mean by deviation? Incident ray সঙ্গে যে রিফ্লেক্টেড রে যেটা হবে, যেটা বাড়বে, সেটা 30 ডিগ্রি ডিফারেন্স। মানেটা কি? তার মানেটা কি? অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন 30 ডিগ্রি। वेरी गुड, एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री। मुझे इतना कहानी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन, वो बोला है 30 डिग्री। देखो उन्होंने एंगल ऑफ डेविएशन वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने बोला इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे दे मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, मतलब वो बोला डेविएशन एंगल इज 30 डिग्री। शो दैट द इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर थ्रू विच इट इमर्जेस, माने शो दैट अगर ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये नॉर्मल है, तो इमर्जेंट रे ऐसे जाएगा तो इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ऐसे जा रहा है, देखो ये अगर मेरा नॉर्मल है, रे अगर ऐसे गया, कुछ एंगल बनाया, अगर ऐसे गया 90 डिग्री, लेकिन अगर ये रे ऐसे करके जाएगा तो इमर्जेंट रे का एंगल कितना होगा विद द नॉर्मल? Zero degree. 0 डिग्री। अगर बोल रहा है इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल 90 डिग्री with the base of the prism या इस तरह का लैंग्वेज, so that the emergent ray is perpendicular to the face through which it emerges. क्लियर हुआ? इस ये जो फेस है जहां से इमर्ज कर रहा है, इसके साथ ये 90 डिग्री है, मतलब तुम्हें ये दिखाना है इमर्जेंट रे 0 डिग्री है। शो दैट इमर्जेंस रे परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द प्रिज्म, फेस थ्रू विच इट इमर्जेस, एंड कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। और मुझे एन भी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तुम्हें ये प्रूफ करना है कि इमर्जेंट रे इज 0 डिग्री। हालांकि यहाँ पे मिनिमम डेविएशन नहीं बोला है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मिनिमम डेविएशन का ही क्वेश्चन देगा। लेकिन देखो डेल मुझे मालूम है नॉर्मल कंडीशन से आई प्लस ई माइनस है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन तो कहा नहीं, तो जरूरी नहीं है कि ये मिनिमम डेविएशन होगा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन बोला नहीं है। और हमें ये मालूम है डेल इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस है। कैन वी राइट दिस? Yes, sir. देखो डेविएशन एंगल बोला है 30 डिग्री, इमर्जेंट रे बोला है 60 डिग्री, ई मुझे पता नहीं है, ए बोला है 30 डिग्री, तो ई का वैल्यू कितना आया? 0. 0 डिग्री। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि यस, emergent ray makes an angle 90 degree with the face of the prism or with perpendicular with the base of the prism. Is it clear? Yes, sir.
अब देखो अगर इमर्जेंट रे 0 डिग्री है, व्हाट अबाउट R2? एनीवन कैन टेल मी? कैन वी फ्रॉम दिस डेटा कैन वी हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट R2? है ना, देखो ये है n, तो n इंटू साइन R2 इज 1 इंटू साइन 0. साइन 0 कितना होगा? 0. Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कभी 0 नहीं होगा, तो R2 कितना होना चाहिए? अरे दिस इंटू दिस इज 0, ये कभी 0 नहीं होगा, तो यही 0 होगा ना. साइन R2 मस्ट बी 0 ना. साइन R2 कब 0 होगा? जब R2 0 होगा. तो जब R2 0 होगा, मतलब अगर ये 0 है, हम सीधा बोल सकता है कि R2 भी 0 होगा. अगर कहीं पे I 0 हो गया, इसका मतलब सीधा R1 भी 0 होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे ये नहीं हो रहा, यहाँ पे ये हो रहा है. तो अगर R2 0 हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2 है ना, दैट इज 30 डिग्री, है ना. तो R2 मेरा 0 है, तो R1 कितना होना चाहिए? 30 degrees. So we can say from this, as R2 is 0, R1 is 30 degree. Can we say that? Yes, sir. अब देखो मेरे पास इंसिडेंट एंगल है 60 डिग्री, R1 है 30 डिग्री. तो क्या मैं फॉर द फेस AB, इंसिडेंट और इमर्जेंट मेरे पास दोनों है, तो क्या मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल सकता हूँ? 1 इंटू साइन 60 डिग्री n इंटू साइन R1 विच इज 30 डिग्री. सो n क्या हो गया? साइन 60 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री, मतलब साइन 60 कितना होता है? √3/2. साइन 60 डिग्री कितना था? 1/2, तो √3. √3. इंडेक्स क्या हो गया? √3. समझा? देखो ये मेरा मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन नहीं है, पहला दो मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन है. तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया. तुम्हारा वो शीट में भी कुछ क्वेश्चंस है, और इसके बाद हम लोग, तुम लोग सिर्फ मिनिमम डेविएशन और नॉर्मल वाला करना, कोई कंडीशन वाला नहीं करना, क्योंकि कंडीशन वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कराया नहीं है. बहुत सारा कंडीशंस है जो कि बोर्ड्स में नहीं आता है, एंट्रेंस में आता है. तो मैं नेक्स्ट दिन पहले मैं कुछ क्वेश्चंस खोज के रखूंगा फ्रॉम एग्जाम आइडिया, मतलब जिसमें प्रीवियस ईयर्स का बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछा है, तो वो मैं प्रिज्म का पहले कराऊंगा विच इज रिलेटेड टू बोर्ड. फिर मैं तुम्हारा एंट्रेंस लेवल पे जितना सारा पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस का वो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डिस्पर्शन एंड डेविएशन स्टार्ट करूंगा. ठीक है? Okay, sir. ये हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा. फिर हम लोग रिफ्रैक्शन बाय द कर्व सरफेस पढ़ेंगे. हाँ, स्कूल में देखोगे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ कर्व सरफेस का डिराइवेशन करवा के छोड़ दिया, लेकिन कर्व सरफेस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, एंड यू डोंट बिलीव, कर्व सरफेस में 7 डिराइवेशन है. मैं एक दिन देख रहा था, हाँ किसी का इसमें हो रहा था पढ़ाई, मुझे नहीं बोलना चाहिए, एक डिराइवेशन किया हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, 7 डिराइवेशन है. तो मैं तुम्हें ऐसा प्रोसीड्योर सिखाऊंगा कि मैं तुम्हें 1 या 2 करके दिखाऊंगा, एंड देन यू कैन डिराइव योरसेल्फ एनी 7 डिराइवेशन. तुम्हें खाली कंडीशन बोलेगा ये होगा, ये होगा, क्या करना है, यू कैन डिराइव योरसेल्फ. जब तुम्हें कर्व सरफेस का डिराइवेशन अच्छा से समझ में आएगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल समझ में आएगा, फिर तुम लेंस अच्छा से समझ पाओगे. तो ऑप्टिक्स लगता है बहुत छोटा है, खाली 1-1, 2-2 लाइन का थ्योरी है, 1-1 डिराइवेशन किया हो गया, ऐसा नहीं है. उस डिराइवेशन के ऊपर बेस करके बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल है. इसलिए एंट्रेंस का ये सबसे चाहिदा चैप्टर है ऑप्टिक्स, जिससे काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चंस बनता है. और इसका जो मेन चीज है वो है साइन कन्वेंशन. हम लोग धीरे धीरे ये सब देखेंगे. ओके, सो आज मेरा क्लास यहीं पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और फिर मैं थर्सडे को